in front of you, page number 60. Open page number 60 of your books. The Little Land, a beautiful poem written by Robert Louis Stevenson. He's the writer, poet of this poem. Very beautiful poem. You enjoyed it a lot. First, there are some difficult words in this poem. First, we discuss those difficult words. Then we go ahead for the poem. Okay? I'm going to share the screen with you. So the difficult words here are, the name of the poem is The Little Land. Little Land. This is the name of poem. Page number is 60. And the difficult words which I'm going to discuss with you is clove. What's the meaning of clove? It's a small plant with 3 leaves. So it's a plant which is having 3 leaves over it. Next is bumble bee. Bee, you all know bee हम किसे कहते हैं? किस तरह की मक्खी? Bee हमें मक्खी को कहते हैं. But bumble bee is a noise which makes lot of noise. A bee which make a lot of noise. एक ऐसी मक्खी होती है जो बहुत ज्यादा शोर करती है, भूं की आवाज बहुत ज्यादा करती है. That is bumble bee. The next one is bear. Bear means without any covering, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है. वेरी गुड. जिसके ऊपर कोई, जो बंद नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है. The next one is peached. Preached mean come to rest. आराम की पोजीशन जो होती है. Preached mean rest, resting position. And next is mending. Mending means किसी चीज को बनाना. जब हम किसी चीज को रिपेयर करते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं, that means mending. Hope all the new words of this poem is clear to all of you. Let's go ahead. Very good. Now let's go ahead with the poem. So first, I will teach you about Robert Louis Stevenson, who is the writer of this poem, poet of this poem. Here we go. Yes. So here is our poem. This is Robert Louis Stevenson. He born in 1850 and died in 1894. He was a Scottish novelist. He belongs to Scotland. He writes poetries, novels, essays. He's a travel writer. He go to place to place and write different poems about different things about that place. And his most famous works are Kidnapped and Treasure Island. These are the 2 important writings of this writer. So today I'm going to teach you The Little Land by Robert Louis Stevenson. First, I will read whole poem. After that, line by line meaning I will explain. सबसे पहले मैं आप सबको पूरी पोएम सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको उसका लाइन टू लाइन मीनिंग बताऊंगी. When at home alone I sit and am very tired of it. I have just to shut my eyes to go sailing through the skies. To go sailing far away to the pleasant land of play. To the fairy land afar, where the little people are, where the cloves tops are trees, and the rain pools are seas, and the leaves like little ships sail about on tiny tips. And above the daisy tree, though the grass is high o'erhead the bumblebee
harms and passes. When my eyes I once again open and see all things plain, high bare walls, great bare floors, great big knobs on drawers and doors, great big people perched on chairs, sticking trucks and mending tears, each a hill that I could climb, and talking nonsense all the time. Oh dear me, that I could be a sailor on the rainpool sea, a climber in the clover tree, and just come back a sleepy head. Late at night, go to bed. This is the whole poem. This poem, this poem is about this little boy. It's an imaginary poem. First, it's important to know what is the meaning of imaginary. Imaginary का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. Imaginary का मतलब होता है जो चीजें हम सिर्फ सोचते हैं, जो चीजें, because at your age, when I was at your age, I was thinking about a fairy land. सब बच्चे सोचते हैं, खाली मैं नहीं सोचती थी. जो भी बच्चा इस उम्र में होता है, जो भी बच्चा इस छोटी उम्र में होता है, आप लोगों की एज में होता है, जब भी हम लोग अकेले बैठे होते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचते हैं जहां पर सिर्फ फेरीज होती हैं, हर चीज हमारे अकॉर्डिंग होती है, हर चीज हमारे साइज की होती है. वी ऑलवेज थिंक अ वर्ल्ड बिहाइंड दिस क्लाउड्स. ऐसा लगता है जैसे मानो इन बादलों के पीछे की जो दुनिया, हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं. जब आप लोगों की, जो अभी आप लोगों की स्टेज चल रही है, इट विज एवरीवन, सबके साथ होता है, विद योर पेरेंट्स, विद मी, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर एट योर एज. सबके साथ ये हुआ था. सबने इस उम्र में ऐसी फेरीज के बारे में, ऐसी परियों परी लोग के बारे में सोचा था. Ashvika, from my side, there is no problem of network. Maybe there is a network weak, that's why you're not able to hear me at that time. Now I'm clear now. So this poem is about child imagination. एक बच्चे की सोच, एक बच्चे की imagination के बारे में ये poem है. When the child closes his eyes, अब poem इस तरह से start हुई है कि बच्चे ने अपनी आंखें बंद की हैं. He imagines that he has traveled to different land of dreams. अब उसकी सोच में ऐसे आया, जैसे उसने आंखें बंद की, उसकी सोच में ऐसे आया कि जैसे मानो किसी और दुनिया में चला गया है. He's going to some other place. But the moment at the end when he opens his eyes, in the first paragraph, he defines only the imaginary world. And in the second paragraph, he come back to his own world. पहला पैराग्राफ जो उसने डिस्क्राइब किया है, उसने वो इमेजिनरी वर्ल्ड का पैराग्राफ डिस्क्राइब किया जिसमें उसे लगता था कि वो किसी और दुनिया में जा चुका है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जा चुका है. और जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें उसने अपने वर्ल्ड को दोबारा से डिस्क्राइब किया है. This is all about the summary of this. We can say this is the summary of this poem. So we go for the line to line meaning. When at home alone I sit and I'm very tired of it. कहते जब मैं घर पे अकेला बैठा हुआ था, मैं इस चीज से बहुत तंग आ चुका था. हमेशा अकेले रहना, हमेशा अकेले बैठना, अकेले चीजों के बारे में सोचना, मैं से टायर्ड का मतलब होता है ऊब चुका था. मैं इस चीज से ऊब चुका था. Then he said, I have just to shut my eyes. उसके बाद मैंने अपनी आंखों को बंद किया. I close my eyes to go sailing through the skies. और मेरी जो सोच थी, मेरी जो इमेजिनेशन थी, वो आसमान से भी आगे चली गई. जो आसमान है उससे भी आगे मेरी इमेजिनेशन चली गई. To go sailing far away. Now I'm sailing far away. Now I'm not in this world. I am beyond this world. I am somewhere else. To the pleasant land of play. Now where is the child? He's on the pleasant land of play. Land of play, a place, a land where he can play. The place which is according to the poet, which is according to the boy. To the fairy land far. अब मैं बहुत दूर परियों के देश में जा चुका हूँ. Where the little people are. जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत छोटे छोटे मुझे नजर आ रहे थे, बहुत छोटे छोटे, बिकॉज ही इज अ चाइल्ड. और जो बच्चों की जब हम बड़े कोई चीज इमेजिन करते हैं तो वो
बड़ों के अकॉर्डिंग इमेजिन की जाती है। जब बच्चे कोई चीज इमेजिन करते हैं तो वो अपने लेवल से, अपनी सोच, आपने ये चीजें खुद भी देखी होंगी, वेन एवर यू इमेजिन एनीथिंग यू ऑलवेज इमेजिन इट्स अकॉर्डिंग टू यू। आप जब भी कोई चीज इमेजिन करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो वो आपके द्वारा आपके जैसी होती है वो चीज। तो इस बच्चे ने भी ऐसा किया, इसने भी उस दुनिया के बारे में सोचा, और वहां पे लोगों को इसने छोटा इसलिए कहा क्योंकि ये खुद भी छोटा था। Then he said, where the tops are trees. Clove is a kind of plant which is having 3 flowers. अब इसने कहा कि मैं ऐसी दुनिया की इमेजिनेशन की है जहां पर क्लोव, एक छोटा सा पौधा जिसके 3 पत्ते होते हैं, वो ट्रीज के, मानो कि वो ट्रीज है वहां पर। एंड आफ्टर दैट, एंड द रेन पूल्स आर सीज, और वहां पर जो रेन पूल्स थे, जो बारिश से पानी इकट्ठा हो जाता है, टुडे वी आर हैविंग रेन पूल्स बिकॉज हैवी रेन वाज देयर इन द मॉर्निंग। आज सुबह खूब सारी बारिश हुई, तो आफ्टर दैट रेन so many of you are having in your garden, somewhere near your house you are having rain pools. Aradhya Sharma, unmute yourself. Aradhya Sharma, unmute yourself. Aradhya. Insha Malik, unmute yourself. There was rain at your place? Yes, ma'am. सुबह आपके घर के पास भी बारिश हुई थी? Yes, ma'am. So do you understand what is rain pool? Rain pool का क्या मतलब होता है, समझ में आया आपको? Yes, ma'am. जब बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है उसे हम रेन पूल कहते हैं। ओके, सो द चाइल्ड, इन दिस पोएम वी आर टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड। इस पोएम में हम एक बच्चे के बारे में, यस मैम, व्हाट इज बम्बलबी? I will come to that, my dear. Now I am not there. मैं अभी वहां पर नहीं पहुंची हूँ। Wait for, my dear, wait for your turn. When we read there, if I not explain, then you will ask me. अभी जब मैं आपको जहां तक पढ़ा रही हूँ वहां तक सुनिए। अभी तक हमने इस पोएम में पढ़ा है, a child was sitting alone at home and he was very tired of this. So he wanted to do something very interesting. What he has done? He go to his imaginary world, where he think about the different things. Where he think about a place of fairyland, a place where there are fairies. उसने ऐसी दुनिया के बारे में सोचा जहां पर फेरीज जैसी दुनिया के बारे में सोचा उसने, क्योंकि सारे ही छोटे बच्चे सोचते हैं। अब वो अपनी इमेजिनेशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, वो ऐसे बता रहा है उस फेरी लैंड को कि जहां पर जो क्लॉव ट्रीज टॉप्स होते हैं वो ट्रीज के जैसे, जहां पर पानी, बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो वहां पर मानो सी की तरह है। And the leaves are and the leaves like little ships, और जो पत्ते हैं वो ऐसे लगती हैं जैसे शिप्स चल रही हैं, sailing about on tiny trips. अब वो क्या करिए, yes मैम, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो एक पूल बन जाता है ना? हाँ जी बेटा। So the poet is describing about all this. Babekdeep, unmute yourself, please. Unmute yourself, Babekdeep. Yes, ma'am. You are a child. आप भी एक बच्चे हो, तो आप कभी जब सोचते हो तो अपनी दुनिया को कैसे सोचते हो? एक बच्चे के अंदाज में आप कैसा सोचते हो कि आपकी दुनिया कैसी है? मैम, मतलब जैसे कोई कार्टून होता है वैसा कभी कभी आता है सपना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारा सपना होता है। तो ये पोएम भी एक बच्चे के बारे में है। उस बच्चे ने भी अपनी दुनिया को एक फेरी लैंड की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है, एक परियों की दुनिया की तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, सो वी गो अहेड। Bare means without any covering. Bare का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। And above the daisy tree. Daisy is a plant. आप सबको पता है डेजी फ्लावर होता है। उस बच्चे की दुनिया में वो प्लांट जो है, डेजी का जो प्लांट है, फ्लावर है, वो ट्री के जैसा है। दो द ग्रासेस, बहुत बड़े बड़े घास है वहां पे। High overhead the bumblebee. Bumblebee is a kind of bee
बम्बल बी जो होती है एक मक्खी होती है जिसकी साउंड बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जिसकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होती है, जो बू करके चलती रहती है, दैट इज अ बम्बल बी। और वो कह रहा है मेरे सिर के ऊपर से वो बम्बल बी गुजर रही थी, हम्स एंड पासेस, मेरे पास आती थी और फिर दूर चली जाती थी, फिर मेरे पास आती थी और फिर मेरे से दूर चली जाती थी। दिस काइंड ऑफ बी इज बम्बल बी। जो the one is red one, that is not the bumblebee, the yellow and the black one is the bumblebee. So this is all about the imagination of that child, the fairyland, flowers, grass, trees of white flowers, everything according to the child is in fairyland. He described all the, Devika, we are not at mending, my dear. So he imagined the world like this. Now, in the next paragraph, he said, when my eyes I once again open, और कहते हैं फिर वो वापस अपने बेड में आ गया, कहते हैं जब मैंने एक बार दोबारा से अपनी आंखें खोली, जैसे ही मैंने अपनी आंखें दोबारा से खोली, आई सी ऑल थिंग प्लेन्स, और मैंने देखा वो सारी चीजें बदल चुकी थी, वैसी की वैसी थी। इट मीन्स द सेम एज इट इज। मेरी आंखें बंद करने से पहले जैसी दुनिया थी वैसी की वैसी ही मुझे नजर आई। हाई बियर वॉल्स, हाई बियर का मतलब होता है जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें, द बिग नॉब्स ऑन ड्रॉर्स। एंड अब जो बच्चे के लिए जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं, डोर्स होते हैं, वो खोलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको वो, उस बच्चे को वो कैसा लग रहा था, वो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं ये ड्रॉर्स को खोलना। कहते दोबारा से मैं उसी दुनिया में आ गया जहां पर बड़े बड़े डोर्स थे, बड़े बड़े ड्रॉर्स थे। A big people preaching on chair, resting chair, रेस्टिंग चेयर होती है जहां पर लोग रेस्ट करते हैं, रॉक करते हैं, उस चेयर के बारे में बोलते हैं। बड़े बड़े लोग, ग्रेट पीपल, ग्रेट बिग पीपल प्रीचिंग ऑन द चेयर, बड़े लोग आराम से रेस्ट ले रहे थे उस बड़ी सी कुर्सी पे। स्टिचिंग टक्स एंड मेंडिंग टीयर्स, जहां पर चीजों को जोड़ा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। मेंड मतलब किसी चीज को रिपेयर करना, किसी चीज को तोड़ा जा रहा था और जोड़ा जा रहा था। ईच अ हिल दैट आई कुड क्लाइंब, मेरे लिए तो मानो ये सारी चीजें ऐसी थी कि पहाड़ जैसी थी। इनमें से किसी चीज तक मैं पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि ये चीजें मेरे से बहुत बड़ी बड़ी थी। एंड टॉकिंग नॉनसेंस ऑल द टाइम, एंड व्हाट द बिग पीपल आर टॉकिंग अबाउट आई कांट अंडरस्टैंड। वो कहते हैं बड़े लोग क्या बातें कर रहे थे, मुझे वो भी समझ में नहीं आता था, बड़े लोगों की बातें भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं वापस उस दुनिया में आ गया था। ओ माई डियर मी, अब वो अपने आप से कहते हैं डियर मी दैट आई कुड बी, मैं कहाँ हूँ मैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अ सेलर ऑन द रेन पूल सी, क्या मैं किसी रेन पूल सी में एक सेलर बन सकता हूँ, वहां पे नाव चला सकता हूँ। अ क्लाइंबर इन द क्लोवर ट्री, जो क्लोवर का छोटा सा पेड़ है, क्या उसके ऊपर क्लाइंब कर सकता हूँ, उस पर चढ़ सकता हूँ। एंड जस्ट कम बैक अ स्लीपी हेड, अब फिर उसकी आंखों में नींद आ गई, उसको नींद आ रही थी। लेट एट नाइट गो टू बेड, और फिर दोबारा से वो बेड के ऊपर सोने के लिए चले गए। This is all about the poem. Hope you understand all. Hope all of you understand the poem. Okay, I will take your queries, but before that, I would like to announce something. My dear students, yesterday I have taken your test, your abacus test. After intimating 2 to 3 times you that you have not submitted your paper, only one student come to me back that ma'am, I have not submitted my paper. Please keep it for 30-40 minutes more so that I can complete my paper. Why you are so careless, my dear students? आप लोग इतने careless कैसे हो सकते हो? 2 दिन पहले आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपका पेपर है, उसके बाद भी पेपर वाले टाइम पे आपको दोबारा फोन कर करके बोलना पड़ता है कि आपका पेपर नहीं आ रहा है, आपका पेपर नहीं हुआ है। It's not good, my dear students. Be attentive for yourself. You are not that much small. अब आप उतने भी छोटे बच्चे नहीं हैं कि जिनको हर चीज के लिए हम बोलेंगे, हर चीज के लिए पेरेंट्स बोलेंगे। मैंने आपको हर बार ये बात समझाई है। I have written the name in the list those who have not submitted, and surely I'm going to give them 0 marks. जिनका पेपर मेरे पास नहीं आया है, जिनके नाम मैंने ग्रुप में डाले हैं, उन्हें T1 में अबेकस में 0 मार्क्स मिलेंगे। During T1 exams, whatever the time is given to you,
You have to complete your paper in that time. No one is going to run after you after that. आपके पीछे कोई नहीं भागेगा कि आपका पेपर नहीं आया, आपका पेपर नहीं आया, आपका पेपर नहीं आया. आपका काम होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो then you will get 0. Now let's share your queries. Those who have submit, I have the record is with me, but those who have not submit, please make sure next time I'm not going to ask you. Hitakshi, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, what's your question? Ma'am, what is tiny trips? Tiny trips, छोटी छोटी trips. Trips का मतलब होता है जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं. Tiny का मतलब होता है छोटी, छोटी छोटी trips. Okay, ma'am. Aradhya Sharma, unmute yourself. Aradhya Sharma, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, dear. Ma'am, what is hums? What is hum? पास आना, hums and passes. पास आना और दूर जाना. Okay, ma'am. Anandika, unmute yourself. Ma'am, Yes. ma'am, what is the meaning of perched? It's preached. Preached means come to rest. Rest की position जो होती है उसे preached कहते हैं. And ma'am, bear? Bear means जिसके ऊपर cover नहीं होता है. मैम आपको मेरा पेपर आया था? जिसका बेटा मैं अभी नहीं, मुझे पता है किसका आया था नहीं आया था. जिसका नाम मैंने ग्रुप में डाला था उन बच्चों का पेपर नहीं मिला था, बाकी सबका पेपर मुझे मिल गया है. मैम मैंने सबमिट कर दिया था. ओके बेटा. प्रणवी शर्मा, unmute yourself. Yes, ma'am. Pranvi, yes. Yes, ma'am. Ma'am, what is the meaning of sailing? What's the meaning of Sailing. सेलिंग का मतलब होता है जब हम पानी में कोई बोट चलाते हैं या पानी में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे सेल करना कहते हैं. When we Okay, take ma'am. the Okay, ma'am. okay. Yes, Tavishi Chip, unmute yourself. Yes, ma'am. Ask your question. Ma'am, what Fast, is the very meaning fast. of? I have to take all the queries. Ma'am, what is the meaning of bear? Bear means without covering, जिसके ऊपर कोई cover नहीं होता है. Okay, ma'am. Ma'am, one. Insha Malik. Insha Malik. Sambhavi Singh, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, your question, please. Ma'am, what is the meaning of mending? Mending किसी चीज को ठीक करना, repair करना. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Avreet Kaur Wazir. Yes, Avreet. Ma'am, what is the meaning of clover? Clover is a plant which is having 3 leaves at the top. ऐसा छोटा सा प्लांट होता है जिसके ऊपर 3 पत्ते होते हैं. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, dear. Mute yourself. Selena, unmute yourself. Selena. Yes, ma'am. Yes. मैम कल Yes. मैंने आपको पेपर भेजा था, आपको आया था? बेटा जिसका नाम, आई होप यू ऑल आर एबल टू रीड योर नेम. ये क्वेश्चन मेरे से अभी क्लास में कोई नहीं पूछेगा. जिसका नाम मैंने ग्रुप में भेजा था उसका पेपर नहीं मिला था. ये नहीं पूछेंगे कि मेरा मिला या नहीं मिला. बाकी सबके पेपर्स मुझे मिले हैं. जिनका नाम मैंने ग्रुप में डाला है उनका पेपर नहीं मिला है. बच्चे मेक श्योर दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट दिस टाइम फॉर दीज टॉक्स. ओके, यू हैव एनी क्वेरी फ्रॉम द पोएम? Yes, ma'am. Yes, dear. Ma'am, Yes, बच्चे. ma'am, what is purse? What is Purse.
First, इसके स्पेलिंग बोलिए। PERCHED. It's not first, it's preached. Okay? Resting position, किसी चीज की resting position। जब कोई इंसान रेस्ट करता है, कोई भी चीज रेस्ट की स्टेट में होती है, उसे हम कहते हैं। रूपाक्षी महाजन, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes, your question please. मैम मुझे ना ये वाला पैराग्राफ समझ नहीं आया। When my eyes I once again open. उस पैराग्राफ में जो बच्चा है, जो ये पोएम हमें बता रहा है, वो इसके बारे में बता रहा है कि जब एक बार मैंने आंखें अपनी दोबारा से खोल दी, उसके बाद में हर चीज वैसे ही थी। बड़ी बड़ी चीजें थी, बड़ी बड़ी दीवारें थी, बड़ी बड़ी चेयर्स थी, बड़े बड़े लोग थे। रहत, हाउ यू आर स्लीपिंग ऑन द बेड? विल यू सिट प्रॉपरली? ऑल ऑफ यू टर्न योर कैमरास। Rahat, open your camera. All of you turn your cameras, please. So many times I told you I don't want at 11:30 you are laying on the bed. Is this the way? रहा था ना एक ठीक लगा ऐसे बट पेट नहीं थी। It's very shameful, my dear. नहीं मैं तो क्वेश्चन पूछ रही थी इसलिए मैं मैम अब फिर से समझ आएगी ना मैम। Yes, Rupakshi. In this paragraph, the child open his eyes and he see the wall, big walls, big floor, big chairs, everything that big as it is there in the home. जैसे हर चीज बड़ी बड़ी घर में थी, तो वैसे की वैसे उस बच्चे को दोबारा से नजर आने लगी। और वो ये सब चीजें नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना चाहता था। फिर वो खुद से ही कहता है, क्या मैं कभी उस रेन पूल में सेल कर पाऊंगा? क्या मैं कभी किसी क्लोवर ट्री के ऊपर क्लाइंब कर पाऊंगा? और उसके बाद उसे नींद आ जाती है और वो सोने के लिए चला जाता है। Clear? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Ashwika Gupta, unmute yourself, please. Ma'am, what is the meaning of afar? Afar का मतलब होता है दूर। Okay. And ma'am, what is the meaning of perched? Preach me, come to rest. Rest Ma'am, what? जो किसी की रेस्ट वाली पोजीशन होती है, उसे हम कहते हैं Okay, आराम वाली thank you, ma'am. Welcome, dear. Priyanshal Verma, unmute yourself. Ma'am, Yes. what is the meaning of ducks? What's the meaning of Ducks. ducks? No, Will you ma'am, please ducks. spell it? Spell Ma'am, it. Spell it. DUCKS. Is it in the first para or in the second para, my dear? Ma'am, last para. Second line. Second line. Last para, second line. And just come back a sleepy head late at night, go to bed. ओके ओके, स्टिचिंग टक्स, जैसे कोई उधड़ी हुई चीज होती है ना, उसको स्टिच करना। जब कोई फटी हुई चीज होती है, उसको स्टिच करना। एंड मेंडिंग टीयर्स, और दोबारा से, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो नेचुरल वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ना बेटा, वहां पर बहुत सारी चीजें, मतलब उस बच्चे ने अपनी इमेजिनेशन शो की है वहां पे। हमारे जो रियल वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत ज्यादा दुख होते हैं। हम अपने दुखों को जोड़ तोड़ के, ठीक करके, अपने आंसुओं को पहुंच के हम दोबारा से अपनी लाइफ में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई ही मेंशन हियर स्टिचिंग टक्स एंड मेंडिंग टीयर्स। टीयर्स को देखो, टीयर्स को कोई रिपेयर नहीं कर सकता, आंसुओं को कोई रिपेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मतलब दुखों को दे कंपेयर, the boy compare the tucks and tears with the pain of this world. उसने टक्स को, टीयर्स को इस दुनिया के पेन के साथ रिलेट किया हुआ है। क्लियर? मैम, थैंक यू मैम। वेलकम डियर। हरमनजोत कौर,
हरमनजोत कौर, यस। मैम मुझे फर्स्ट पैराग्राफ नहीं समझ आया। फर्स्ट पैराग्राफ जो है बेटा वो एक बच्चे की इमेजिनेशन है, हर बच्चे की। As I told all of you, please turn off your cameras. Only the few students have turned off on their cameras. I want every one of you turn on their cameras. इकजोत, आराध्या शर्मा, एलिजा, आनंदिका, अर्शप्रीत, लक्षिता, महरीन रूफ, नुशिका, सीमा, महरीन रूफ,